Welcome back everyone in this lecture of sum of the series in arithmetic progression. This is question number 6. I am going to take over. If you have not gone through my previous lectures, then please go through them first. Then only you will be able to understand these questions. Let's see this question. If nth term of an AP is 1 by n and nth term of an AP of same AP is 1 by m, then find the sum of mn terms. Mn terms. Okay. So in this question we need to find out Smn. What information is given to you? Mth term Am is equal to 1 by n and an nth term is equal to 1 by m. This information is given to you and this thing is asked. Okay, so let's see what we can do. Let's write the equations first. Am is what? A plus m minus 1d, which is 1 by n, and an is what? A plus n minus 1d, which is what? 1 by m. Subtract the equations, you will get m minus 1 d minus n minus 1 d minus minus minus. This will cancel out. This thing minus this thing is equal to this thing, 1 by n minus 1 by m. So take out common d. What do you get? You get m minus 1 minus n plus 1, because this negative sign will make this negative sign as positive inside the bracket and d outside. And now take LCM. You will get m minus n upon mn. Okay, now this plus 1 and minus 1 will cancel out. You will get m minus n times d is equal to m minus n by mn. So now easily you can see d is 1 by mn. D is equal to 1 by mn. Okay, now find out what is A. You have previously, if you have gone through my all lectures of arithmetic progression, then you must have seen this type of question already solved in another form. Okay, so I told you that you will always get d is equal to 1 by mn. Now let's find out A. What is A? So put value here in this equation or in this equation, any of these two. So A plus m minus 1 into 1 by mn is equal to 1 by n. Okay, open it up. You will get A plus m minus 1 upon mn is equal to 1 by n, or A plus m upon mn minus 1 upon mn is equal to 1 by n. This will cancel out. You will get A plus 1 by n minus 1 upon mn is equal to 1 by n. Now see, 1 by n will cancel out on both sides of the equal sign. So you will get A is equal to again 1 by mn. D is also same, A is also same. Now find out what is Smn. Because of the scarcity of space, I have to do all this. Please don't mind. Okay, let's see. A and D we have found. Let us find out what is this Smn. See why I am doing all this. I know it is a bit congested and you are not able to clearly see, but the reason behind is that all the shops are closed, and because of this coronavirus crisis, I have limited resources. These pages that I am doing this work on is limited. That's why I have to do all this in this manner. Okay, let's see. Smn is equal to n by 2 mn by 2 times 2a plus mn minus 1
D. Okay, let's not do this here. Let's do it here in a fresh page. Okay, so I'm going to write this thing here. Smn is equal to Mn by 2a plus Mn minus 1 D. Now you already know that your A was 1 by Mn and your D was also 1 by Mn. Put the values. You will get Mn by 2 times 1 upon Mn plus Mn minus 1 into 1 by Mn. Now this will become Mn by 2 upon Mn minus plus Mn minus 1 upon Mn. See, both the denominators have Mn. Take common. Mn by 2 plus Mn minus 1 upon Mn. Now this you will get Mn cancels with Mn. Now you will have 1 by 2 in outside the bracket and 2 plus Mn minus 1, that is Mn minus plus 1. So this is your final answer. That Smn is 1 by 2 Mn plus 1. So if you want to pause the video and note it down, then you can see it from here. I'm removing it, and now I will write the answer directly here, that you will get the answer as 1 by 2 Mn plus 1. Okay, now let us move on to the next question. The next question is, find the sum of all natural numbers between 200 and 400 which are divisible by 7. Now between word is written here. If you have gone through previous lectures, I will again say, then you must know that we discussed about this word between. If you don't see this word between, then you take into consideration 200 and 400 also. But if you see this word between, then you exclude 200 and you exclude 400 from your consideration of your series. Now we see the word between, so we will start from 201 and end at 399. Okay, I already told you how to find which number is divisible by, which first number is divisible by 7 and which last number is divisible by 7, or any other number. In the previous lectures I have given this method, so let us not waste time. Let's just quickly see 201 is divisible or not. If it is not, then which number is divisible? Let's see. 201 by 7, so it will go 2 times 14, then you have 6, then you have 1, 61. Now I think that 7 into 8 is 56, so you will have 5 here. Okay, now 7 minus 5 is 2. 7 minus 5 is 2. This is the method that I told you previously, so I'm not going to get into that again. Is 2, so add 2 here, you get 203. 203. So this 203 is completely divisible. See, by 7. You have here what? 7 times 7 2 times 14. Then you have 6. Then you have 3, 63, 9 times here. Okay, completely divisible. Now first term A1 becomes 203 and last term AN is less than 399 and D is 7.
because again if you will keep on adding 7 to the numbers, you will get all those numbers which are divisible by 7. 203 is the first one, then 210, then so on. Okay, so we have what do we need to find out? We need to find out how many such numbers are there between these two numbers, 200 and 400 excluding, or 201 and 399 including, which are divisible by 7. So let's find out n. What is n? So now we have this formula here, an is less than 399, or you can say a plus n minus 1 d is less than 399. Now you have here 203 plus n minus 1, d is 7, less than 399. Now you have 7 times n minus 1, less than 399, minus 203, you get 6 here, you get 9 here, you get 1 here. So n minus 1 is less than 196 upon 7. Now 196 divided by 7 will give you 2 times 14, and you will have 5 here, 56. Now 56 is already divisible by 8. 56. Now it is completely divisible, so you will get n minus 1 less than what? 28, or n less than 29. So if n is less than 29, then automatically we will take n equal to 28. भाई n की वैल्यू 29 से छोटी है और n एक नेचुरल नंबर है, तो n क्या हो सकता है? 28 हो सकता है, तो n इज इक्वल टू 28. तो 28 टर्म्स ऐसे हैं, इन दोनों टर्म्स के बीच में जितने भी सब नंबर्स हैं उनके बीच में 28 टर्म्स ऐसे निकल के आ रहे हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, और अब हमें उन सारे टर्म्स का सम निकालना है. तो S28 हम निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा यहाँ पे ज्यादा, 28 अपॉन 2 कर दूंगा, 2a कर देंगे हम लोग. a हमारा कितना है? 203a प्लस n माइनस 1, 28 माइनस 1, d हमारा कितना है? 7 है. ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 406, ये हो जाएगा 27 इंटू 7. इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. तो इसको मैं यहीं पे लीव कर रहा हूं. इस क्वेश्चन को बस आपको समझने की जरूरत थी कि ये क्वेश्चन कभी कभी यहां तक के भी आ सकता है, केवल कि फाइंड आउट कीजिए कितने टर्म्स 7 से डिविजिबल हैं. फिर इसी क्वेश्चन को वो एक्सटेंड कर सकते हैं कि पता करिए कितने टर्म्स 7 से डिविजिबल हैं और उन सारे टर्म्स का सम भी बताइए हमको. तो वो यहाँ पे सम भी निकल आएगा उन सारे टर्म्स का जो 7 से डिविजिबल हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बच्चे भी क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग. एक ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द सम अप टू n टर्म्स. इस सीरीज के n टर्म्स का सम हमें निकालना है. ये सीरीज बड़ी अजीब सी है, यहाँ पे n टर्म्स का हमें सम निकालना है. हमें निकालना है व्हाट इज Sn. अच्छा, अब इस सीरीज को थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज करेक्टली नहीं रिटन है. ये 4 माइनस 1 अपॉन n, 4 माइनस 2 अपॉन n, 4 माइनस 3 अपॉन n एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये हो जाएगा. लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 4 अपॉन n माइनस n हो जाएगा वो. तो करना क्या है आपको? इस सीरीज को थोड़ा सा सेपरेट करना है, चीजों को अलग अलग करना है. ये जो 4 है, ये कितनी बार लिखा है? अभी यहां पे तो ये 3 बार लिखा हुआ दिख रहा है मुझे. ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि n टाइम्स इनको सम करना है. तो ये जैसे डॉट 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 जो लिखा हुआ है, डॉट 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 का मतलब होता है कि और ये कई बार आगे चलता चला जा रहा है. 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहां तक जा रहा है? ये n तक जा रहा है ये. तो ये जो 4 लिखा हुआ है, ये 4 कितनी बार लिखा हुआ है? 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितनी बार? ये n टाइम्स है. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने टाइम्स? n टाइम्स. ठीक है. अच्छा, और हमारे पास क्या है फिर? ये जो चीजें बचती हैं उनको अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं. प्लस माइनस 1 अपॉन n लिखा है, माइनस 2 अपॉन n लिखा है, माइनस 3 अपॉन n लिखा है. कहां तक जा रहा है? ये भी n टाइम्स जा रहा है.
तो अब आपके पास आ रहा है ये जो सीरीज है Sn, वो जो सीरीज आपकी Sn है वो हो रही है 4 प्लस 4 प्लस 4 n टाइम्स। अच्छा ये बताओ 4 को अगर हम 2 बार ऐड करें तो क्या होगा, 4 प्लस 4 8। 4 को 3 बार ऐड करें तो क्या होगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 12, मतलब 4 इंटू 3। 4 बार करोगे तो 4 इंटू 4 16। 4 को 5 बार ऐड करोगे 20, 4 इंटू 5। 4 को n टाइम्स करोगे तो कितना आएगा, 4 इंटू n, है ना भाई। 4 इंटू n हो जाएगा 4n। अच्छा यहां से सब में से माइनस साइन अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, और देखो सबके नीचे n भी है, वो भी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, तो एक तो बचेगा माइनस का साइन बाहर निकल आएगा और एक 1/n बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक के n टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 1/n। आपने अगर ऑब्वियसली पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो ये क्या चीज है, ये नेचुरल नंबर्स का सम है, n नेचुरल नंबर्स का सम है ये। तो n नेचुरल नंबर्स का सम में का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो कि होता है nn प्लस 1 अपॉन 2। अगर आपको नहीं याद है, नहीं देखा है, तो जाके पिछले लेक्चर्स देखिए, उनको स्टडी कीजिए, तब आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं हर इस चीज का डेरिवेशन दोबारा नहीं करूंगा। अब आप ये देखिए यहाँ पे 4n माइनस, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2, बीच में है माइनस, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये 2 इधर एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा 8n माइनस n प्लस 1 अपॉन 2, आपको मिल जाएगा 8n माइनस n माइनस 1 अपॉन 2, जो कि हो जाएगा आपका 7n माइनस 1 अपॉन 2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 63। थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग यहां पे, कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 63। पहले 7 टर्म्स का सम S7 वो है 63, ठीक है। मतलब A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ये आपको करना नहीं है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कर रहा हूं केवल, ये आप एग्जाम में नहीं करेंगे ऐसे, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161। नेक्स्ट इसके बाद के 7 टर्म और लिखो जरा, A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14, ये तो हो गए इसके नेक्स्ट 7 टर्म्स, और ये हो गए पहले 7 टर्म्स, ठीक है। तो इसका सम इन्होंने बोल दिया है 63, और इसका सम इन्होंने बोल दिया है 161। मैं फिर से कह रहा हूं, ये चीज आपको लिखनी नहीं है, ठीक है, ये केवल एक्सप्लेन करने के लिए है। पहले 7 टर्म्स का सम है 63, फिर 8 से लेकर के 14 तक, S8 से लेकर के S14 तक का सम है 161। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है, फाइंड द 28th टर्म, तो 28वां टर्म हमसे पूछा गया है, वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए कि अगर हम लोग A1 से लेकर के A14 तक ऐड कर दें सारे टर्म्स, तो हमें क्या मिलेगा, S14 मिलेगा। A1 A2 A3 इन सबको ऐड कर दो, यहां तक के, यहां से लेके यहां तक के सारे टर्म्स को ऐड कर दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, S14, 14 टर्म्स का सम, जो कि हो जाएगा इन 7 टर्म्स का सम प्लस नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम 63 प्लस 161 हो जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा 4 6 प्लस 6 12 का 2 1 और 1 प्लस 1 2, ठीक है।
S14 की वैल्यू आ गई आपके पास 224 और S7 की वैल्यू है 63। इन दोनों इक्वेशन से हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं, ये देखा जाए। S7 का मतलब होता है S7 का मतलब होता है 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 d इज इक्वल टू 63। अब अगर इस 7 को इससे काट दिया जाए तो यहाँ बचेगा 9 और ये 2 अगर इधर आ जाए तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन 2a प्लस 6d, ये 6d हो गया इज इक्वल टू 9 इंटू 2 इधर आ जाएगा, हो जाएगा 18। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास ये S14 की, जो कि ये 2 to 4, तो हमारे पास आ रहा है S14 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 d, क्योंकि a और d की वैल्यू पता ही नहीं है यहाँ पे, इज इक्वल टू 2 to 4, तो ये 7 हो गया है ना, 2 से काटा 7। अब इसको इधर काटेंगे तो देखें ये कैंसिल आउट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। 7 से काटें इसको, 22 21 जाता है 3 टाइम्स, 1 बचा, ये जाएगा 2 टाइम्स, तो बच रहा है 32। तो दूसरी इक्वेशन बन रही है 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 और 1 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, जो कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 3 में लीनियर इक्वेशंस में। इसके नीचे लिखता हूं 2a प्लस 6d इक्वल टू 18 और माइनस 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 आपको मिल रहा है यहाँ पे 13 माइनस 6 जो कि होता है 7d इक्वल टू यहाँ 32 माइनस 18 आपको मिल रहा है 22 माइनस 2 20 माइनस 6 14, जो कि आपको मिल जाएगा d इज इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू तो हमें 2 मिल गई। a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली, किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख दो d की वैल्यू, जैसे इसमें रख दो 2a प्लस 6d इक्वल टू 18 में हम d की जगह 2 रख दें तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 18, जो कि हमें मिलेगा 2a इज इक्वल टू 18 माइनस 12, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 2a इज इक्वल टू 6 या फिर a इज इक्वल टू 3। ये आपने a और d निकाल लिया। जब a आ गया है d आ गया है तो a28 आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, वो आप खुद से निकालिएगा। मैं यहाँ पे a28 निकालने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, वो आप खुद से निकाल सकते हैं। a28 इज इक्वल टू a प्लस 27d और a और d की वैल्यू आप रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत थी हमें केवल कि इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, ये आप समझ लीजिए बस। अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग केवल इतने ही क्वेश्चन रख रहे हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस देखेंगे थोड़े और